Hey guys, welcome to the latest episode of Unfiltered Startup Stories podcast. Today we have the pleasure of hosting Upamanu, the co-founder of Lecture Notes and College Sala, one of India's leading undergraduate notes marketplace. Last year they have also raised seed funding of $2.5 million. So hi Upamanu, thank you for joining us today and sharing your story with our listeners. So can you basically share your background from personal to like professional, like how you entered in the startup, like how a startup and you basically intersected. तो आई तो मेरा कोई प्लान था नहीं स्टार्टअप में आने का. ओके, सो आई हैड जॉइंड कॉलेज. फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था बीटेक. आई वाज अ बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट हेरिटेज कोलकाता. एंड सो मी एंड माय फ्रेंड वी ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. एंड मेरे को शौक था कि ऐसा कुछ मैं अलग करूंगा. अभी सुन के काफी मटेरियलिस्टिक लगता है कि पेपर में नाम आएगा एंड सोशल मीडिया पे पोस्ट होंगी. सो आई वाज ऑलवेज इनटू दैट. तो एंड आई वाज ऑलवेज अ टॉप परफॉर्मर. तो स्कूल में भी क्लब वर्क्स के हेड, द स्टूडेंट काउंसिल, organizing events. I always kind of like doing that kind of an activity. And me and my friend had started off a kind of a blog page. उस टाइम पे वही स्टार्टअप लगता था. which has hit off very well उस टाइम पे. .com site नाम था. So then I joined college. Obviously सब तो बंद हो गया. And college में someone told me कि there's an entrepreneurship competition being organized. उसमें पिच करते हैं, बहुत नाम होता है. मेरे को लगा अच्छी बात है यार, चलो फर्स्ट ईयर है कॉलेज करके कुछ धमाका करेंगे. I go on a stage, I pitch some random product, but somewhere or the other I get Mr. Akib Hussein's attention, who is my first mentor in this world, in the startup world. So Akib Bhai, I call him Akib Bhai, and Akib Bhai was sitting as one of the judges, and he gets up and he tells everybody कि भाई इसकी तारीफ मत करो, ये एक ही आंसर 5 बार दिया है 5 क्वेश्चंस के लिए, और तुमको अच्छा भी लगता है. And then he tells people कि यार इसके पास कुछ प्रोडक्ट वोडक्ट नहीं है, but he's a good pitcher. Anyone who wants a good mouthpiece in their team, take. So वहाँ से I meet my first co-founders Ranjan and Anushka, RAU Industries. That was my first startup. First year के end पे we were working into material manufacturing from unsegregated plastic waste. काफी awards जीते हमने उसके चक्कर में. We had raised some amount of seed funding also, but eventually it didn't work out in the right way. Sorry. At that point of time, one of my childhood friends, Shauradeep, connected with me. उसके दिमाग में था कि यार he was a BCom student, कि हमको study materials मिल नहीं रहे हैं. We actually are not able to get the right amount of notes. Tuitions काफी expensive है. तो यार इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं. So we two, like both of us hit off, and मेरे को टेकी चाहिए था. तो मेरा एक कॉलेज का दोस्त था फजल. We 3 come together and we started College Sala. सिंपल कॉन्सेप्ट कि सारे जो हर स्टेट में हर ट्यूशन टीचर अपने रीजन का हीरो है, अपने सब्जेक्ट का हीरो है. हमको इन सारे हीरोज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, उनकी कंटेंट क्यूरेट करनी है और उनको एट अ लो प्राइस ऑफर करना है टू द मासेस. डिस्ट्रीब्यूशन वर्कआउट कर लिया तो वील बी एबल टू मेक नॉट ओनली मेक मनी बट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लॉजिक वही था. तो वी स्टार्ट अप विद अ पायलट. ये था उस टाइम सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज हो गया था मेरा, मोर और लेस. We start off with a pilot and eventually get connected with Mr. Sushrit Mishra, who at that time was the chairman of Lecture Notes. उन्होंने Lecture Notes, who was Lecture Notes one of the first investors, and Lecture Notes हमारे competitive analysis में बार-बार आता था. They were a very established marketplace at that point of time, but they were dealing in more or less like paper download model था उनका. BTech notes में ज़्यादा deal करते थे. तो we kind of get connected with her. Shauradeep had LinkedIn पे उनको ping किया था. And तो he connected, he asked us what we were doing. हमने pitch की, हमारी बातें हुई, काफी महीनों तक चली. And eventually it ended in a discussion कि let Lecture Notes put in the seed money in College Sala. We were obviously elated यार, second year of college में proper seed funding देखने को मिल रही है from an esteemed person. यार इस और क्या चाहिए लाइफ में, हो गया. तो we go, we bring in Akib Bhai. Akib Bhai helped a lot with the negotiations. We fly out to Bhubaneswar, close the deal, and College Sala hit off. We scaled it to somewhere around 30,000 users, got somewhere around a monthly revenue of 1 lakh. Expanded to Bihar, Jharkhand, Odisha, Delhi. And at that point of time, Lecture Notes was restructuring. Lecture Notes' old founder had taken an exit. Mr. Mishra had taken over the company.
एंड हमारे काफी अच्छे रिलेशंस थे उनके साथ, तो वी वर काइंड ऑफ एडवाइजिंग हिम ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लेक्चर नोट्स इन एन इनफॉर्मल वे, बिकॉज़ वी वर कॉलेज वाला वाज ऑलवेज इंडिपेंडेंट इन इट. तो इवेंचुअली दैट रिजल्ट्स इन अ एक्विजिशन डील कि यार let lecture notes acquire college shala at $1 million valuation and you people know now take charge of lecture notes. So that was somewhere around third year of college. और सही है यार, because lecture notes was at that point of time had more than 2 million users. काफी बड़ा था. There was a huge team of 70-80 people, 50,000 plus faculties थे. For us it was a very enticing deal कि आप मतलब suddenly at one time you are leading a 20-member team. 20-member टीम कंपनी के सीईओ, और सडनली आपको एक 100 member टीम विद प्रेजेंस अक्रॉस 12 states, 1-2 million यूजर्स, ऐसी कोई बड़ी एंटिटी के ऊपर बिठा रहे, तो कैसा लगेगा आपको? फॉर मी एट माय एज इट वाज लाइक क्रेजी. सो वी टुक द डील, वी गॉट एक्वायर्ड, वी गॉट रेज्ड, एंड देन वी रेज्ड दिस राउंड $2.5 million का जो प्री सीरीज है राउंड. This was from Canada-based Jani Ventures. Post the round, we also understood very clearly, यार देखो ये this is a very big game we are talking about, and we are pretty young for that. So we need to bring in a lot of experience. अगर हमको इसको सही तरीके से स्केल कर, यार मेरे को लगता है ना, ये जो एक एंटरप्रेन्योर की एक दो बार फंड हो गए तो ईगो हो जाती है ना, मैं ही तो चलाऊंगा, मेरा ही तो है, मैं तो नहीं करूंगा. तो नहीं. Obviously the entrepreneur has to do everything himself. वो तो हमेशा you cannot be lead by. But आपको ना समझ जाना चाहिए कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में you need to bring in good people. So that resulted in getting Mohit Bansal in, who was a very like a great value addition. इस साइड में सूरज भान took charge as CTO. He's a ex Morgan Stanley, ex Oracle guy. Yeah, and from there we hit off. So from first second year of college में in college shala to by the time I graduated, I had already raised a pre-series A round, now running a company which is valued at more than $7 million. तो काफी मतलब छोटे टाइम पे एक बड़ी लीप हो गया मेरे लिए. हाँ. तो like basically when you were like raising funds and like your company was getting acquired, you were in college, like so how difficult it was for you people to manage both the things? Like definitely your priority was startup only, but definitely you have to like take care of your academics as well. So how difficult it was for you people? Excuse me. Yeah, so honestly इस बात पे ना my college helped me a lot. So I have won one of the youngest awardees by the Kalyan Bharti Trust. I have won काफी prizes for college and in college also. तो college की तरफ से काफी support था. मेरे जो joint registrar sir थे, मेरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल सर थे और जो अभी भी हैं, देन मेरे ट्रस्ट के जो सीईओ सर, मेरे को काफी सपोर्ट मिला सर. सो क्लासेस नहीं जाता था बट फिर भी सेमेस्टर देता था, एंड आइडली हेल्प मिल जाती थी. तो वैसा मतलब फिर तो कोविड आ गया, 2 साल तो कोविड ने बचा लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 2-3 सेमेस्टर कोविड ने बचा लिए, बाकी 2-3 सेमेस्टर थे वो कॉलेज ने बचा लिए. एंड मतलब स्ट्रेंजली जब मैं इवेंचुअली ग्रेजुएट किया, मैंने एग्जाम जो 8 सेमेस्टर है वो ऑफलाइन हुआ था. तो मैंने एग्जाम भी दिया था. उस टाइम फंडिंग हो चुकी थी, वी हैड टू शिफ्ट टू गुड़गांव, नया ऑफिस यहाँ एस्टैब्लिश हो गया था. सो मंडे रात को मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, ट्यूसडे दोपहर को मेरा एग्जाम है, और मंडे रात तक मैं ऑफिस में मीटिंग्स में बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. और उससे पहले 2 साल तो और कुछ नहीं पढ़ा, और मेरा 8 सेमेस्टर का एग्जाम है, मेरे को नहीं पता मैं क्या एग्जाम देने जा रहा हूँ. मैं गया ट्यूसडे मॉर्निंग से दोपहर तक मैंने जो पढ़ना था थोड़ा पढ़ा, मैंने अपनी ही कंपनी के नोट से पढ़े कि नहीं ये देख लेते हैं थोड़ा, एग्जाम दे दिया मतलब. बट इवेंचुअली जब रिजल्ट निकला, आई वाज शॉक्ड यार, बिकॉज़ आई हैड पास विद 8 पॉइंट प्लस डीजीपी. आई वाज लाइक ये कैसे हो गया? तो मतलब स्ट्रेंजली मैं एकेडमिक्स एंड मेंटेन्ड. एंड यार इसमें ना एक चीज थी, मेरे जो मेन एंजल इन्वेस्टर थे मिश्रा सर, तो भी शी इज लाइक अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड टू मी. उन्होंने बहुत क्लियरली मेरे को पहली एंजल इन्वेस्टमेंट से बोल दिया था कि यार ड्रॉप आउट मत, ये ड्रॉप आउट वाला कल्चर इंडिया के लिए नहीं है. एंड यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ ड्रॉप आउट एंटरप्रेन्योर्स और अ लॉट ऑफ ड्रॉप टॉप एग्जीक्यूटिव्स. यार ड्रॉप आउट वाली चीज ना वो सुनने में फैशनेबल लगती है, उसके अलग रोने हैं. तो मेरे में ऑलवेज था कि कॉलेज तो कंप्लीट करनी है, अब कैसे करनी है वो प्रॉब्लम थी, बट चलो हो गया. एक मजे की बात मैं बताता हूँ. व्हेन I had gone
फॉर माय ग्रैंड वाइवा जो 8 सेमेस्टर में हर इंजीनियर का होता है, ग्रैंड वाइवा होता है 4 साल आपने क्या पढ़ाई की उसके ऊपर आपको वाइवा देते हैं। 4 साल मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, मैं गया ठीक है, आई अगेन हैड टू फ्लाई ऑफ फ्रॉम दिल्ली फॉर दिस, आई वेंट, बट अब उससे घुसने से पहले तक मेरी हालत खराब थी कि यार पढ़ा नहीं यार, ये लोग तो आज पूछेंगे, आज को जम के पूछेंगे, क्योंकि इतने दिनों बाद इनके हाथ लगा हूं मैं। आई गो इन एंड यू नो द प्रोफेसर जिनसे मैंने कोई मतलब बात भी नहीं की होगी ज्यादा, लाइक अरे तुम आजकल कहाँ रहते हो, तुम तो मिलते नहीं, अच्छा इज्जत मिल रही है, चलो ठीक है बैठते, उतरने से पहले मिलती है शायद, तो भाई ठीक है सीट, मैं और दो स्टूडेंट करके होता है ग्रैंड वाइवा, तो हम दोनों अंदर गए, मेरे को बिठाया, उसको तब तक पहला प्रॉब्लम दे दिया, मैं देख रहा मेरे को ये लोग प्रॉब्लम ही नहीं दे रहे कुछ, मेरे साथ बैठे दो पहले बातें की, पूछा क्या कर रहे हो, अच्छा क्या सीन है, पेपर में पढ़ते हैं थोड़ा, फिर बात की कि अच्छा मतलब हाउ डू टीचर्स एसोसिएट विद योर कंपनी, तो इन्हीं बातों में 15 मिनट निकल ही गए, आई वाज लाइक मैम ग्रैंड वाइवा है वैसे मेरा, उसमें दे आर लाइक अच्छा कोई बात नहीं, 1 मिनट, तो दे आस्क्ड मी अ वेरी इजी प्रॉब्लम जो मतलब फर्स्ट ईयर में शायद फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को पूछते होंगे, उसमें भी वो हिंट्स दे रहे थे कि अरे ये ऐसे होता है वैसे होता है, बोले बेटा हो गया तुम्हारा ग्रैंड वाइवा, आज खत्म, घर जाओ। So like basically, lecture notes name saved you in the main viva. अरे it saved me brand name, yeah. So basically अभी like you said कि like your college helped you a lot, like कि मतलब भाई क्लास नहीं कर सकते and all. तो recently we have seen the news from BITS Pilani like कि they are offering कि भाई आप 1 साल तक स्टार्टअप पे वर्क करना है तो प्रोफेसर हो या स्टूडेंट हो, you can work on and like college will take care of other things. So like do you think that this is something like और भी colleges like will follow BITS Pilani? यार और ये जो है ना देखो एक तो यार AICTE का रूल है, स्टूडेंट्स 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर ऑफ ले सकते हैं, ऐसा एक रूल निकला है AICTE का, एंड ये मतलब मेरे 3rd ईयर में ही निकला था। प्रॉब्लम है किसी कॉलेज को अवेयरनेस नहीं है इस रूल की, एंड उसका कारण है AICTE ने प्रॉपर्ली कोई सर्कुलर आइडियली नहीं दिया होगा, एटलीस्ट मेरे कॉलेज में जब ढूंढने गया इस रूल का, देयर वाज नो रिकॉर्ड, एंड द टीचर एंड द रजिस्ट्रार जॉइंट रजिस्ट्रार हिमसेल्फ वाज लाइक यार मतलब इसका तो आई हैव टू आल्सो चेक की वेयर इज इट एप्लीकेबल, एंड इसमें ना बिट्स पिलानी जैसी जगह पे आप वो कर सकते हो आइडियली, टू बी ऑनेस्ट, because you know the culture habits has a kind of students, the pedigree of students that go there eventually, and I respect these people. मैंने भी दिया था, मेरा नहीं हुआ साइड, but बिट्स वालों की एक पेडिग्री होती है, plus the mentorship, the alumni base they get, it's easier. I won't say like obviously they do have a same kind of struggle, but उनके लिए ना इन्हीं जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी इजी हो जाती है, because the alumni base has amazing entrepreneurs, established entrepreneurs, established VCs, so there are a lot of good people to guide them, plus there are a lot of good initiatives, like there are a lot of good clubs and all that bits जो आपको actually समझाते हैं how to proceed. वहां पे मेरे हिसाब से आप ऐसा स्टेप ना ले सकते हो, आप अगर हमारे जैसे मेरा जो कॉलेज था यहाँ पे ये सारे स्टेप्स लोगे यार, मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा है इन चीजों के कंपेयर टू एक्चुअली, ऑल्सो ना यार मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो मेंटरशिप चाहिए, छुट्टी वुट्टी तो उसको बाद में दे देना, पहले उसको समझाओ तो क्या करना है, कि I have seen some people who could have built amazing businesses मेरे से भी better, because they were in their own running a pretty good setup, जो considering the situation मैं बोलूँगा बहुत सही setup था without any support, but just because उसके बाद उनके पास कोई guidance etc थी नहीं, उनको लगा इसको क्या होगा, इसको मारो डिस्कट, चलो TCS नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले यार मेंटरशिप लाओ, कनेक्शंस लाओ, फिर ये पॉलिसीज तो बनती रही है, बिट्स में भी बनी क्यों, क्योंकि बिट्स सॉ दैट इट हैज अ कंसिस्टेंट हिस्ट्री ऑफ गिविंग नॉट ओनली द ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स बट आल्सो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, जैसे ब्लू लर्न जो अभी इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी है, एंड आई पर्सनली नो देम, these guys are all started off as when they were students in bits, and then of my age group, मैं भी जब 2nd 3rd ईयर में तो शुरू किया तो उन्होंने भी वैसे ही शुरू किया, the support they've got is amazing. यार वो पहले मिलना चाहिए, फिर you can work this out. So basically we can say that the kind of mentorship BITS Pilani gave, or the kind of alumni network they have, they help us like a lot in nurturing up, like when we are anyone is starting in their college life, they don't have a right direction, and like BITS Pilani play a very important role for their students, but in case of other colleges it is not a very much like active. Yeah, मतलब it's not in the tier 3 plus colleges, I would say tier 2 तक I think है,
But it's also because you know, जैसे अगर बहुत सिंपल है, अगर जैसे मैं अभी अपने कॉलेज से निकला, मेरे कॉलेज में and eventually lecture notes does make it big, and me as an entrepreneur I make it big. Then the next guy who starts off while studying in heritage and he tries connecting to me, मैं तो obviously उसको respond करूंगा ना यार, and मैं उसको सब में help करूंगा जो help मेरे को नहीं मिली. And he will obviously not face the same situations I would, because kahin to I'll give him an introduction. I'll give him some kind of support. The support doesn't always have to be monetary. It's like ये नहीं कर, इससे problem हमेशा होती है, ये कर. I will do that. And in the other cases, even if there are people graduating and eventually if I do make it big, there would obviously be a lot of angels and VCs I would be in connection with. And someone graduates from heritage and starts off a good business which actually has the right kind of metric. I will at least get him 5 introductions. यही तो करते हैं. Any college you go to, the alumni who are successful entrepreneurs, how do they help the others? Either they themselves put in money, or they arrange the right kind of meetings or give the right kind of advice. And वो काफी important होता है. आप अगर placement statistics भी देखोगे, बहुत टाइम टॉप इंस्टीट्यूट्स के प्लेसमेंट स्टैट्स इसलिए सिर्फ अच्छे नहीं है बिकॉज वो टॉप इंस्टीट्यूट्स की एक रेपुटेशन है, वो इसलिए भी अच्छे हैं बिकॉज बहुत टाइम उनके अलुमनाई बेस्ड कंपनीज लेके आते हैं. लाइक मैं अगर जेयू का था, मैं अगर जेयू का हूं तो मैं जेयू का किसी को हायर करूंगा, वो मेरा कॉलेज है. And that is prevalent everywhere, honestly. हाँ, like कोई भी इंडस्ट्री हो, like this kind of preference की मतलब भाई जहाँ पे connected है वो, हाँ. So like what are your like suggestion of guidelines to the students who are like starting up their own edtech startup? I will mostly focus on edtech because you belongs to that basically category. So what are the challenges or the guidance you want to put on, like if someone is starting his edtech startup? यार आइडली तो if anyone starts edtech तो यार पहली बात है copycat मॉडल मत बनाओ. And edtech has its fair share. कुछ नया इंटरेस्टिंग है तो पहले उस पे बनाओ. Second, don't accept money too early. हमारा क्या होता है ना, like हमने भी ये किया था, you know, the moment we are able to close the first angel, we are like, सर पैसा let's raise. ये फैशन हो गया raise यार, ये गलत फैशन है. उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो बहुत गलत होते हैं. एंड एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की तैयार होती है ना उसके बाद वो अनरियलिस्टिक हो जाती है सर्टेन पॉइंट्स पे. And there's no guarantee you'll be able to fulfill them. So you know, avoid taking money as long as possible. Obviously there will be a stage when that money would be needed for scale. तब उसको लो. You know, money का भी एक स्टेज होता है, उस तक पहुंचो पहले. वरना हमारे यहाँ क्या है ना, तो पहले the first step of success is आपने रेस कर लिया. Like आप अच्छे एंटरप्रेन्योर तब नहीं, आपने जब तक रेस नहीं किया. एक माइलस्टोन अचीव हो गया. हाँ, like ये इन्वेस्टेड फंडेड है. ये फंडेड है मतलब इसकी इज्जत है. जरूरत नहीं, ये 1 रुपया रेवेन्यू नहीं कर रहा, बाजू वाला 5 करोड़ रेवेन्यू करके बैठा है. हाँ. सर ये फंडेड है, इसमें सेक्वायर में पैसा डाला है, बट आज से ये अच्छा आदमी. ये मतलब पहले तो ये अवॉइड करो. सेकंड, ट्राई बिल्डिंग अ बिजनेस विद पॉजिटिव यूनिट मेट्रिक्स. वो बर्न एंड ग्रो में कुछ नहीं रखा है यार. अगर आपका स्केल करने के लिए बर्न कर रहे हो अलग बात होती है, बिजनेस चलाने के लिए अगर बर्न कर रहे हो ना, उसको जस्टिफाई कर रहे हो विद सारे वो टीवी एंड एंटरप्रेन्योरियल बुक्स वाले आइडियल्स की नहीं. आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग ग्रेट, इसलिए आई हैव टू बर्न. आई एम बिल्डिंग अ ग्रेट इनोवेशन, पाथ ब्रेकिंग इम्पैक्ट है मेरा, इसलिए आई हैव टू बर्न. ठीक है ना. मतलब आई वुड बी कोटिंग नेम्स, बट एडटेक के एक बहुत बड़े सीईओ ने हमेशा अपने आर्टिकल्स वगैरह में ये भी डाला है कि मैं एक सर्टेन होटल चेन के स्पेशल स्वीट में बिना बैठे मैं समझ ही नहीं पाता. मैं समझ गया. स्टेटमेंट्स हैं. एंड देन बॉस, देयर इज अ गाय हु हैज ओपनड अनदर कंपनी टुडे, उसका मैं नाम भी ले सकता हूं, अलग पांडे फिजिक्स वाला. बिना वो रूम स्वीट मैनेजमेंट डिग्री, बिना उस सब के उस बंदे ने उसी वैल्यूएशन पे कंपनी बनाई है इन अ शॉर्टर टाइम, इन लेस नंबर ऑफ रेजेस विद प्रॉफिट्स. तो यार मतलब एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हम इन दोनों से इन्फ्लुएंस होते हैं. पहले वाले से मतलब देयर हैज बीन एट लीस्ट 20 ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर टुडे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हु हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द फर्स्ट गाय बिकॉज़ ही हैज डन समथिंग पाथ ब्रेकिंग. वो मैं कभी डिनाई ही नहीं कर सकता. बट वो जो चीज है ना, वो चीज हमारे यहाँ क्या होती है, वो पाथ ब्रेकिंग चीज करने से पहले वो वाली माइंडसेट पहले आ जाती है. You know, you need a race to understand how innovative you have been. PMF खोजना है. या तेरा प्रोडक्ट अगर सही से नहीं बिक रहा है तो काम करना भाई उसमें. उससे साथ रेस का क्या लेना देना है. And because I've seen it happen.
Like And everyone जो is like running फिर behind the पैसे बनाओ, valuations. या फंड रेस से तुम्हारी सेल्स नहीं बन जाएगी. पहले तो Hmm. पैसे बनाओ. सेकंड यार, लर्न टू बिल्ड अ बिजनेस विद यूनिट पॉजिटिव मैट्रिक्स. Hmm. बिकॉज यार फिर क्या होगा ना, तुम्हारा बिजनेस किसी वीसी फंड पे डिपेंड नहीं करेगा. Hmm. You will be able to sustain your team at least. जैसे अगर मैं इसका लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो आई थिंक यू आर acquainted with संकेत, राइट? टीम कॉग्निटो, now known as Zeron. हाँ. अभी तो बड़ा नाम हो गया है because he हाँ. has now just raised from 100x VC and I know him from quite some time. He built his business on a positive metric, sustained his team from revenue and eventually raised an investment. Yeah, I know them. Like you, both the co-founders. Like one is from my college only. कौन? स्नेहांजन? Yeah. अच्छा. तो I've talked to सौभाग्य है, मैंने दोनों से अच्छे से मैं मिला हूँ. संकेत से मैंने ज्यादा बातें की हैं. And I was very happy when I saw the news and I texted him, boss, finally you have done it. And he's like, हाँ यार हो गया. But he had always that mindset कि यार मैं रेस पे मेरा कंपनी नहीं डिपेंड कर सकता. That is something everyone who's starting today should understand, because the perils of VC money or angel money is also there. वो कोई नहीं देखता, सब प्रो देखने चले जाते हैं. There's a large amount of peril also involved. वो याद रखो हमेशा. तो बेसिकली बिजनेस रन करने के लिए मैं पॉजिटिव रहा. हाँ, ग्रोथ के लिए इट्स गुड कि मतलब लोग फंड रेज कर रहे हैं एंड ऑल. It's like 5 साल में ग्रो करता, पैसे आ गए तो 2 साल में कर लिए, वो अलग चीज है. हाँ. बट अगर आपका बिजनेस का डे टू डे मतलब आपका बिजनेस एग्जिस्ट ही कर रहा है जस्ट बिकॉज पैसे. वीसी मनी जिस दिन वीसी ने बोला अगले दिन मैं पैसे नहीं दूंगा, अगले दिन आपकी बिजनेस ही बंद हो जाएगी. तो यार वो मतलब होता था, वो एक टाइम पे चलता भी था, बट अभी नहीं चलेगा. अभी द फोकस हैज नाउ शिफ्टेड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड सबको अपनी यूनिट मैट्रिक्स पॉजिटिव करनी पड़ेगी. मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरे को लोग ट्रोल करने बाद में आएंगे, मेरी नहीं है यूनिट पॉजिटिव. मैं मान रहा हूँ नहीं है, which is the problem, which is the thing we are addressing. We are moving towards profitability. But मैं एडवाइस करूंगा कि आजकल स्टार्ट कर रहे हो तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी पे ही स्टार्ट करो प्लीज. ओके. तो यार हाँ जाओगे हमेशा, मतलब तुम्हारा पूरा टाइम सिर्फ वीसी मीटिंग्स और एंजल मीटिंग्स में चला जाएगा, बिजनेस कुछ नहीं बनने वाला. तो लाइक जब when we are already started discussion on the Indian tech industry, then like अगर कोविड को देखा जाए तो कोविड के टाइम अचानक से बूम हुई थी टेक इंडस्ट्री में. लाइक कि अनअकैडमी है, बाइजू एंड ऑल लाइक एंटर्ड एंड कि भाई पैसे मार्केटिंग में लगा रहे हैं, लाइक लोग खरीद रहे हैं. बट सडनली वी सॉ डिक्लाइन इन द ग्राफ, राइट? जैसे जैसे चीजें क्लासेस ओपन होनी स्टार्ट हुई एंड ऑल. बट हाँ, जैसे बोला कि लाइक अलग पांडे वाले के केसेस के पॉजिटिव जा रहे हैं, बट मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ इन एवरेज देखा जाए तो वो ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया है कंपैरेटिवली, जो अचानक से बूम हुआ. उनका तो स्टोरी अलग है ना. उनका जो था वो जिनको टारगेट कर रहे थे वो कहीं नहीं जा रहे थे, अभी वो कहीं जा रहे हैं. उस प्रॉब्लम ऑफ द अदर जायंट्स, वो जिनको टारगेट कर रहे थे वो कहीं और जा रहे थे, फिर उनके पास जा रहे हैं. अब उनके मॉम डैड ने बोल दिया बेटा सर के कोचिंग में जाके बैठो वरना तुम्हारी पढ़ाई नहीं होने वाली. वो वापस चला गया. अलग पांडे वाली चीज में क्या है ना, वो उन्होंने बॉटम ऑफ द पिरामिड में टारगेट किया. उन्होंने वेरी उनकी कॉस्ट आप देखोगे एंड ही इज सो रिसेप्टिव टू स्टूडेंट्स प्राइसिंग. उन्होंने इतनी कॉस्ट कट की है जगह जगह, तो वो जो ले रहे हैं वो शायद पहले कहीं से नहीं लेते थे. उस टाइप के ऑडियंस के पास चले गए ना. 2,500 में 3,000 में आप जिनको बेच रहे हो वो पहले तो शायद कहीं से नहीं लेते थे, बिकॉज बाहर की फीस बहुत ज्यादा होती है. सिमिलरली खान सर का ऑनलाइन लर्निंग तो बूम कर रहा है. हाँ, मतलब लाइक वो उन्होंने जिनको टारगेट किया है उनकी लो फीस से वो कहीं नहीं जा रहे थे. दैट्स लाइक यू आर इंक्रीजिंग योर टैप. यू आर नॉट इट्स नॉट लाइक अ सिंगल मार्केट जहां से सब लोग स्केप कर रहे हैं. द मार्केट इटसेल्फ हैज इंक्रीज्ड. वो वाली बात. प्लस लाइक कि एडटेक फील्ड ने काफी ज्यादा हायरिंग भी किया था, लाइक इसके कारण बहुत सारे लेऑफ्स भी हायरिंग स्प्री बहुत ज्यादा हुई थी. मतलब थैंकफुली हम हायर कर रहे हैं, हम फायर नहीं कर रहे हैं. हम और ज्यादा हायर कर रहे हैं, अभी आगे करेंगे. बट ये एक चीज हुई है. आई एम वेटिंग कि वन डे आई विल आल्सो गेट एन ऑफर फ्रॉम लेक्चर नोट्स. अरे जरूर सर, आप आ जाओ ना, नो प्रॉब्लम. अभी क्या है ना, बीच में क्या हो गया था, जैसे एवरीवन वेंट टू बिकम बीडीएस. बहुत बीडीए हायर हो गए because it was becoming a sweatshop. लीड जनरेट हुआ, कॉल किया, क्लोज किया, लीड जनरेट हुआ, कॉल किया, क्लोज किया. एंड जैसे ही ऑनलाइन में डिमांड कम होती गई, इतने बीडीएस का करोगे क्या? तो इमीडिएटली एंड मोर इम्पोर्टेंटली बीडीएस से भी ज्यादा जो मेरे को लग रहा है हुआ है, फंडिंग विंटर के चलते सबके रेजेस अफेक्ट में.
None of these companies were profit making, or they were not towards even profitability in certain cases. तो उनको लगा कि the best way to cut slack is employee cost काटो. तो सबको रनवे तो सबको बढ़ाना है, कंपनी सबको बचानी है. And sadly, there was like pretty bad layoffs we have seen. Like Gurgaon में कुछ companies have laid off 85% of the people. This is a matrix of edtech startup or like स्टैंडर्ड यार, मतलब standard. टेक्स तो बंद हो रहे हैं. मुझ पे तो न्यूज आ रही है कि वी हैव शट डाउन द कंपनी. बाकियों में न्यूज नहीं आ रहा कि शट डाउन हुआ है, बट बाकियों में हो रहा है कि दे हैव 85% 70% पीपल दे हैव लेड ऑफ. बाउंसर्स लेड ऑफ 90%. चल रहा है. उल्टा हमारा जो एक हेल्प करता है ना इसमें, हमारा जो बिजनेस में ऑनलाइन में बूम नहीं हुआ, वो बस्ट हुआ. बिकॉज़ हमारा बिजनेस इज कनेक्टेड टू आप कॉलेजेस खुले रखो, तभी बच्चे कॉलेज के एग्जाम पास करने जाएंगे कॉलेज, तभी हमारे नोट्स पढ़ेंगे. अब कॉलेज बंद कर, एग्जाम की सीरियसनेस चली जाती है. सीरियसनेस चली जाती है तो कोई नोट्स पढ़ता नहीं है, कोई नोट्स पढ़ता नहीं तो कोई हमसे खरीदता नहीं है. तो हमारा बिजनेस उल्टा था. तो हमारा है कि जितना नॉर्मल सी बात ज्यादा होगा ना, उतना हमारे लिए सही है. बिकॉज लोग एग्जाम में पास करने के लिए नोट्स लेंगे ना. वरना आपको भी पता है ऑनलाइन कोविड टाइम में ऑनलाइन एग्जाम बिकेम अ जोक. Like it was completely a joke. मैंने भी 8 सेमेस्टर के वही से दिए हैं, ऑनलाइन ही दिए. I can understand. So like how you see the future of basically edtech? Like currently we are seeing like a negative graph, graph in the downward direction for the edtech, for a say. So like how you see the future of the Indian edtech especially? edtech में ना, what I understand is people have to start thinking on innovation. There's a lot of spheres in edtech that has remained untouched. A lot of things that needs to be done. प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वही एक तरफा एक यूपीएससी मार्केट और वही कैट मार्केट को टारगेट कर करके मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, तो सैचुरेशन हो रही है. वही K-12 में सब लोग जा रहे हैं, तो सैचुरेशन हो रही है. तो कर्व डाउनवर्ड जा रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, बच्चों को स्क्रीन टाइम पसंद नहीं आ रहा. बट जैसे ब्लू लर्न इज आल्सो काइंड ऑफ एन edtech startup. इट्स अ स्टूडेंट कम्युनिटी स्टार्टअप. ब्लू लर्न बूम्ड, अभी के टाइम वो बूम कर रहा है. बिकॉज वो बच्चों को ये नहीं बोल रहा कि बैठ के मेरे टीचर से फिर से बैठ के पढ़ाई करो. बच्चे उसके लोकल ट्यूशन जा रहे हैं. वो इनेबल क्या कर रहा है कि मैं हेरिटेज का बच्चा हूँ, मेरे को IITians पे बात करनी ईवी के ऊपर, बिकॉज मेरे को और उनको दोनों को ईवी पसंद है, नॉलेज है. मैं कुछ सीखूंगा, वो भी मेरे से कुछ सीखेंगे. रूलन वो इनेबल कर रहा है. लाइक आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देयर प्रोडक्ट कि ये एक इंपॉर्टेंट नीड इन्होंने टारगेट की. ये लेक्चर नोट्स भी, अभी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, इज लॉन्चिंग समथिंग वेयर इट्स फोकसिंग कि अगर मेरे सारे कॉलेज के बंदे और दूसरे कॉलेज के बंदे एक जगह पे है, व्हिच इज लेक्चर नोट्स, तो यार why can't they talk between themselves? जिसको फोटोग्राफी पसंद है वो सब फोटोग्राफी पे बात करे, जिसको कोडिंग पसंद है कोडिंग पे बात करे. बट करे तो उसको लेक्चर नोट्स में अपनी कॉलेज के बारे में क्यों नहीं पता चल रहा? बेसिकली कम्युनिकेटिव बिल्डिंग क्या लेटेस्ट हो रहा है यार. या मैं अपनी दोस्त जो आईटी में पढ़ती है, मैं उसको नाम भी नहीं जानता. कॉलेज में पहला दिन देखा था. होता है ऐसा यार बहुत कॉलेज लाइफ में. हाउ डू यू सर्च द पर्सन? So lecture notes is gonna enable that pretty soon. Like the product is already in prototype stage and we'll launch it soon. तो ये टारगेट कोई नहीं कर रही है सब जगह. लोग टारगेट क्या कर रहे हैं? लोग टारगेट कर रहे हैं कि सबको ऑनलाइन टीचर लगे पढ़ा देंगे, सबको बुक्स बेचेंगे. और बेसिकली हुआ भी ये कि लाइक 2020 वाज समथिंग जहाँ पे मार्केटिंग हो रही थी कि सबको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, एंड 22 वही हुआ कि वही कंपनीज अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोल रही है. हाँ, ये बिकॉज वही वाली बात होती है ना. मतलब उस टाइम पे सबको लगा था सोल्यूशन इज टीचर्स को ऑनलाइन लेके आओ, जो कि मोमेंटरी सोल्यूशन था. उसमें उल्टा प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन में कोई इंटरेक्टिविटी नहीं है. ऑनलाइन में मेजर प्रॉब्लम है इंटरेक्टिविटी. मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, मेरे को आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, टीचर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. और टीचर को कैसे समझ? टीचर तो 30,000 लोगों को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, नहीं पॉइंट ऑफ टाइम. तो तभी सबको समझ में हम ऑफलाइन वापस चलते हैं, अपने सर के पास चलते हैं. People, the students still reading online, like the way Physics Wala has captured for their batches, are obviously because they have super teaching techniques, fun. Second, ये वो student है जो कहीं नहीं जा रहे थे, तो उनके लिए that's enablement. But अगर 1.5-2 लाख के पैकेज, 70,000 60,000 के जो पैकेज बेच रहे हैं, वो बच्चे जा रहे थे यार कहीं और. और उनको अब समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन चल क्या रहा है. तो which is So basically, and that concludes our episode for today. And I want to take a moment to thank our guest Upamanyu. It was like a great session discussing with him on his startup journey and the key learnings from his journey, and also basically
he share his experiences, like what didn't work and what could have worked अगर वो पहले वापस जाता तो उन गलतियों को सुधार पाएगा. So it would be like a great reference for the people or the students who are starting in EdTech especially as a reference. So it was a pleasure to have you on the show and appreciate your time and contribution, Uphimanyu. So we wish you all the best for definitely your career as well, and definitely the which is directly I will not say directly, but also the graph of lecture notes as well. Like Thank you. thank you, Uphimanyu. Thank you. Okay.